العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. بہرحال ماں تو اس کی کل 3 حالتیں ہیں. السدس مع الولد او ولد الابن وإن سفل، چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا اولاد یا بیٹے کی اولاد کی موجودگی میں تا سلسلہ اخیر. او مع الاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا، یا دو سے زائد بھائی بہنوں کی موجودگی میں من ای جہت کانا، خواہ یہ بھائی بہن کسی بھی جہت کے ہوں. وثلث الکل، دوسری حالت ماں کو ثلث الکل ملے گا، پورے مال کا 1/3 1/3 حصہ ملے گا. عند عدم ہؤلاء المذکورین، ذکر کردہ افراد کے عدم موجودگی میں. وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، تیسری حالت ماں کو احد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد بچے ہوئے مال کا 1/3 حصہ ملے گا، 1/3 ملے گا. وذالک فی مسئلتین، یہ ثلث الباقی کی صورت 2 مسئلوں میں پیش آئے گی. زوج و ابوین، نمبر 1 شوہر کے ساتھ ماں باپ ہوں. وزوجۃ و ابوین، نمبر 2 بیوی کے ساتھ ماں باپ ہوں. ولو کان مکان الاب جد، اور اگر باپ کے ساتھ دادا ہو. فللام ثلث جمیع المال، تو ماں کو کل تمام مال کا 1/3 حصہ ملے گا. الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، مگر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فإن لها ثلث الباقی، اس لیے کہ ان کے نزدیک ماں کو اب بھی ثلث الباقی ملے گا. عزیز طلبہ، احوال سے متعلق جو عبارت پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کے تحت کل مباحث 4 بحثوں پر مشتمل گفتگو کرنا ہے. بحث اول کے احوال ثلاثہ مع مثال و دلیل. بحث ثانی کے احوال ثلاثہ کی وجہ حصر. بحث ثالث زوج و ابوین، زوجۃ و ابوین میں اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو حصہ کے سلسلے میں اختلاف ائمہ مع دلائل. بحث رابع فوائد 6 متعلقہ من الام، ماں سے متعلق 6 اہم فوائد. بحث اول احوال مع مثال و دلیل. ماں کی کل 3 حالتیں ہیں. سب سے پہلی حالت ماں کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، جبکہ فروع مطلق میں سے کوئی ہو. فروع مطلق بیٹا بیٹی پوتا پوتی تا سلسلے اخیر میں سے کوئی بھی موجود ہوگا تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اسی طریقے سے کسی بھی جہت کے 2 یا 2 سے زائد بھائی بہن اگر موجود ہیں تب بھی ماں کو چھٹا حصہ سدس ملے گا. فروع مطلق بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے اگر کوئی موجود ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملنے کی دلیل وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اس آیت کریمہ میں صاف کہہ دیا گیا کہ ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جبکہ مرنے والے نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہو. إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. لہٰذا فروع مطلق بیٹا بیٹی پوتا پوتی تا سلسلے اخیر میں سے اگر کوئی اولاد موجود ہے، کوئی ولد موجود ہے تو ماں کو باپ کی طرح چھٹا حصہ ملے گا. اسی طریقے سے 2 یا 2 سے زائد بھائی بہن ہوں، کسی بھی جہت کے ہوں، تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. دلیل ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. پس اگر مرنے والے نے اخوہ چھوڑا ہو، اخوہ یہ عام ہے، حقیقی بھائی بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی بہن بھی اس میں مراد ہے، اللتی بھائی بہن بھی اس میں داخل ہیں، اور اخیافی بھائی بہن بھی لفظ اخوہ کے عموم میں داخل ہے. لہٰذا تینوں قسموں کے بھائی بہنوں میں سے 2 یا 2 سے زائد اگر ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. دوسری حالت ماں کو ثلث الکل ملے گا.
सुलुसुल कुल कब मिलेगा? जबकि फुरूअ मुतलक बेटा बेटी पोता पोती में से भी कोई ना हो और मुतअद्दद भाई बहनों में से भी कोई ना हो, तो माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। सुलुसुल कुल मिलने की दलील फ़इन लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिही अस्सुलुसु फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिही अस्सुदुसु। आयत करीमा में आदम औलाद की सूरत में माँ के लिए हिस्से सुलुस को बयान किया गया और आगे कुरान करीम ने फरमाया कि अगर इख्वा मौजूद है तो माँ को सुदुस मिलेगा। मालूम ये हुआ कि 3 शर्तों के साथ में माँ को सुलुसुल कुल पूरे माल का 1/3 हिस्सा मिलेगा। पहली शर्त है आदम औलाद जो आयत करीमा में मौजूद है फ़इन लम यकुल लहू वलदुन। दूसरे नंबर पर आदम इख्वा व अखवात, इसलिए कि फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिही अस्सुदुस, वजूद इख्वा की सूरत में माँ के लिए हिस्सा सुदुस की सराहत है, तो वहाँ से हमने इस्तिदलाल किया कि आदम इख्वा व अखवात यानी मुतअद्दद भाई बहन भी नहीं होने चाहिए। नंबर 3 आदम अहदुज़ ज़ौजैन, माँ बाप के साथ मियाँ बीवी में से भी कोई एक ना हो, इसलिए कि माँ बाप के साथ अगर मियाँ बीवी में से कोई एक होगा तो अब ऐसी सूरत में माँ को सुलुसुल कुल नहीं मिलेगा बल्कि सुलुसुल बाकी मिलेगा, जैसे कि माँ की तीसरी हालत यही है। तो माँ को 3 शर्तों के साथ में सुलुसुल कुल मिलेगा। नंबर 1 आदम औलाद फ़इन लम यकुल लहू वलदुन की इबारतुन नस से साबित है, और नंबर 2 आदम इख्वा व अखवात हमने फ़इन कान लहू इख्वतुन से इस्तदलाल किया कि वजूद इख्वा की सूरत में माँ को हिस्सा सुदुस देने की सराहत है, लिहाजा शर्त होगा कि आदम इख्वा व अखवात का वजूद हो कि मुतअद्दद भाई बहन ना हो। और नंबर 3 पर अहदुज़ ज़ौजैन माँ बाप के साथ ना। तीसरी हालत माँ की है सुलुसुल बाकी। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने सुलुसुल बाकी ये तीसरी जो हालत है, इस तीसरी हालत से मुताल्लिक दावा किया हुआ ज़ालिका फ़ी मसअलतैन कि ये तीसरी हालत माँ की सिर्फ 2 ही सूरतों में पेश आ सकती है। नंबर 1 मियाँ बीवी के साथ मियाँ बीवी में से कोई एक हो और माँ बाप हो, तो वालिदैन के साथ माँ बाप के साथ अहदुज़ ज़ौजैन में से शोहर हो, या वालिदैन माँ बाप के साथ अहदुज़ ज़ौजैन में से बीवी हो, तो अब ऐसी सूरत में सबसे पहले मियाँ बीवी में से जो मौजूद है उसका हिस्सा फ़र्ज दिया जाएगा और देने के बाद बचे हुए माल का 1/3 1/3 हिस्सा ये माँ को दिया जाएगा। इसको कहा जाता है बाबे मीरास में सुलुसुल बाकी। माँ को सुलुसुल बाकी जो मिलेगा इसकी दलील ये है कि याद रखें ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिही अस्सुलुस, कि मरने वाले के वालिदैन अगर मरने वाले के प्रॉपर्टी के वारिस हो रहे हों तो माँ को हिस्सा सुलुस मिलेगा। अब माँ के इस्तिहकाक की कुल 2 सूरतें हैं। पहली सूरत इस्तिहकाक जमीअ तरका, माँ बाप दोनों मिलकर पूरा तरका ले लेंगे, लिहाजा माँ और बाप अगर मौजूद हैं तो पूरे तरके के 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा माँ को बहिस्से सुलुसुल कुल, 3 हिस्से का सुलुसुल कुल पूरे प्रॉपर्टी का 1/3 ये माँ को दिया जाएगा, और 2 हिस्सा जो बच रहा है वो बरबिनाए असुबत के बाप ले लेगा। लिहाजा आप देख रहे हैं कि माँ और बाप दोनों ने मिलकर इस्तिहकाक जमीअ तरका कुल्ले तरके के ये लोग मुस्तहिक हो रहे हैं। नंबर 2 इस्तिहकाक बाज़ि तरका, माँ बाप मिलकर पूरे तरके के वारिस नहीं होंगे बल्कि बाज़े तरके के वारिस होंगे, और बाज़े तरके के वारिस होने की यही 2 मिसाल है कि मियाँ बीवी में से कोई एक हो और माँ बाप हो। तो जाहिर सी बात है मियाँ बीवी में से जब कोई एक मौजूद होगा तो उसको हिस्सा दिया जाएगा, और जब उसको हिस्सा दिया जाएगा तो माँ बाप उसके साथ में पूरे तरके के वारिस नहीं हो रहे हैं बल्कि बाज़े तरके के वारिस हो रहे हैं। लिहाजा मियाँ बीवी में से उसके हिस्से को देने के बाद जो बचा हुआ माल है उसका 1/3 सुलुसुल बाकी ये माँ को दिया जाएगा। तो ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिही अस्सुलुसु, इस ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिही अस्सुलुसु की हमने 2 सूरतें बयान की। या तो माँ बाप मिलकर कुल्ले तरके के वारिस होंगे, यकीनन ऐसी सूरत में माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा, और अगर माँ बाप मिलकर पूरे तरके के वारिस नहीं हो रहे हैं, बाज़े तरके के वारिस हो रहे हैं, और ये सिर्फ 2 ही सूरतों में हो सकता है, मियाँ बीवी में से शोहर मौजूद हो और माँ बाप हो, बीवी मौजूद हो और माँ बाप हो, तो ऐसी सूरत में माँ को सुलुसुल बाकी यानी माँ बाकी माल का 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। यह आप हजरात के सामने अहवाल सलासा मा दलाइल पेश किए गए। अब हम इन अहवाल सलासा को मिसाल से आप हजरात के सामने
पेश करते हैं, लिहाजा बोर्ड पर फोकस किया जाए। के अहवाल, ये आप देख रहे हैं, पहली हालत माँ को सुदुस छठा हिस्सा मिलेगा। फुरूए मुतलक, ये आप देख रहे हैं फुरूए मुतलक में से यहाँ इब्न मौजूद है, लिहाजा इब्न को हमने असबा बना दिया और माँ को उसकी मौजूदगी में सुदुस दे दिया। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, लिहाजा 6 से मसला बना, छठा हिस्सा माँ ने ले लिया, माँ बाकी जो 5 था वो इब्न ने बरबिनाए असुबत के ले लिया। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं आप मसले में दो अखियाफी, दो भाई हैं, दो भाई हैं, लिहाजा दोनों भाइयों को हमने यहाँ असबा बना दिया और माँ को इन मुतअद्दिद भाइयों की वजह से हमने हिस्सा सुदुस दिया। फ़इन कान लहू इख्वतुन फली उम्मिही अस्सुदुसु, बस अगर मरने वाले ने इख्वा छोड़ा हो, जमा के साथ में है, लिहाजा ये जमा का इतलाक 2, 3, 4 पर होगा, यानी 2 से शुरू होगा और उससे आगे तक जाएगा। तो 2 भाई मुतअद्दिद हैं तो इख्वा के जमा में वो आ गए और इख्वा के वजूद की सूरत में माँ के लिए हिस्सा सुदुस की सराहत है। हमने 6 से मसला बनाया, छठा हिस्सा माँ को दिया और 5 हिस्सा बरबिनाए असुबत के दोनों भाइयों ने ले लिया। माँ की दूसरी हालत है सुलुसुल कुल की, यानी पूरी प्रॉपर्टी का 1/3, 1/3 हिस्सा माँ लेगी। ऐसी सूरत में आप देख रहे हैं यहाँ मसले के अंदर बाप और माँ के अलावा कोई मौजूद नहीं है, बाप को हमने आसबा बना दिया और माँ को सुलुसुल कुल दे दिया। प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए, लिहाजा इस जमीए तरका, जमीए प्रॉपर्टी, पूरे प्रॉपर्टी के हिस्से में से एक हिस्सा जो सुलुसुल कुल था, कुल का 1/3 हिस्सा ये हमने माँ को दिया और बचा हुआ 2 हिस्सा ये बाप ने बरबिनाए असुबत के ले लिया। ये हमने यहाँ से दलील पेश की, फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फली उम्मिही अस्सुदुसु फ़इन कान लहू इख्वतुन फली उम्मिही अस्सुदुसु, यानी मज़कूरा वारिसीन में से कोई ना हो, ना तो फ़ुरूए मुतलक हो और ना ही मुतअद्दिद इख्वा व अख़वात में से कोई हो, तो माँ को हिस्सा सुलुस यानी जमीए तरका का सुलुसुल कुल मिलेगा। तीसरी हालत माँ की सुलुसुल बाकी की है और सुलुसुल बाकी की ये सूरत सिर्फ 2 मसले में पेश आएगी। मैंने दोनों मसले यहाँ लिख दिए हैं। पहला मसला ज़ौजुन व अबवैन, शोहर है, माँ बाप है, लिहाजा शोहर को अदम औलाद की वजह से निस्फ दे दिया, बाप को असबा बना दिया और माँ को सुलुसुल बाकी दे दिया। लिहाजा 6 से मसला बना, 6 का निस्फ 3 ये हमने सबसे पहले शोहर को दे दिया। 6 में से जब हमने 3 दे दिया तो बचा हुआ माल अब ये 3 है, ये 3 का 1/3 1 है, ये कहते हैं सुलुसुल बाकी, यानी ये बचा हुआ जो 3 है, इस 3 का इस माँ को सुलुसुल बाकी मिलेगा। 6 का सुलुसुल कुल नहीं मिलेगा, इसलिए कि 6 का सुलुस 2 होता है और 3 का सुलुस 1 होता है, तो ये माँ को सुलुसुल बाकी के तौर पर, यानी बचे हुए 3 में से सुलुस मिलेगा वो 1, और जब 1 इसको दे दिया तो बचा 2, वो बरबिनाए असुबत के बाप ने ले लिया। दूसरा मसला है ज़ौजतुन व अबवैन, मियाँ बीवी में से बीवी मौजूद है, लिहाजा आदम औलाद की वजह से हमने उसको रुबू दे दिया, बाप को असबा बना दिया, माँ को हमने सुलुसुल बाकी दिया। 12 से मसला बना, 12 में से 3 हमने चौथाई हिस्सा ज़ौजा बीवी को दे दिया और उसके बाद माँ बाकी जो माल है वो 9 है, 9 का सुलुस ये 3 होता है, वो सुलुसुल बाकी के तौर पर माँ को दे दिया और 9 में से 3 चला गया, बचा 6, वो हमने बाप को बरबिनाए असुबत के दे दिया। यहाँ ज़रा ये गौर करें कि ये माँ को सुलुसुल बाकी ज़ौजुन व अबवैन और ज़ौजतुन व अबवैन इन दोनों मसलों में क्यों दिया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आपने माँ को सुलुसुल बाकी की जगह पर सुलुसुल कुल दे दिया तो तफजीलुल उनसा अल ज़कर, यानी मुअन्नस को मुज़क्कर पर फजीलत देना लाजिम आएगा। वो इस तौर पर कि अगर आप यहाँ माँ को सुलुसुल कुल देंगे तो 6 का सुलुसुल कुल 2 हो जाएगा, तो माँ सुलुसुल कुल के तौर पर 2 ले लेगी और शोहर ने 3 तो पहले से लिया हुआ है, तो 3 और 2 कुल मिलाकर 5 हो गया। असुबत बाप को बरबिनाए असबा के बजाय 2 के 1 मिलेगा, तो ये 1 मुज़क्कर होने के बावजूद उसको 1 मिल रहा है और मुअन्नस को 2 मिल रहा है, तो मुअन्नस को मुज़क्कर पर फजीलत हासिल हो जाएगी। हालांकि बाप ये दोनों एक जहत के हैं और मुअन्नस और मुज़क्कर जब एक जहत के हों तो ऐसी सूरत में मुज़क्कर को मुअन्नस पर फजीलत हासिल होती है। जैसे इब्न और बिन्त ये दोनों एक जहत के हैं, कुर्बे दर्जा में दोनों बराबर हैं, लिहाजा इब्न को 2 मिलेगा और बिन्त को सिंगल मिलेगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम माँ को सुलुसुल कुल देते हैं तो माँ को 2 मिलेगा और बाप को सिंगल मिलेगा, तो तफजीलुल उनसा अल ज़कर की खराबी लाजिम आएगी। इस वजह से ज़ौजुन व अबवैन और ज़ौजतुन व अबवैन के दोनों मसलों में माँ को हमने सुलुसुल कुल के बजाय सुलुसुल बाकी दिया। और जब हमने सुलुसुल बाकी दिया तो आप दोनों मसलों में देख सकते हैं कि यहाँ सुलुसुल बाकी के तौर पर सिंगल मिल रहा है और बाप को डबल मिल रहा है।
تفضیل الذکر علی الانثی پایا گیا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سلوس الباقی کے طور پر ماں کو 3 مل رہا ہے اور باپ کو 6 مل رہا ہے، اور 6 یہ 3 کا ڈبل ہے، تفضیل الذکر علی الانثی علی حال ہی برقرار ہے، برخلاف کہ اگر ہم یہاں سلوس الکل دے دیں گے تو مؤنث کو مذکر پر فضیلت حاصل ہو جائے گی اور باب میراث میں یہ چیز باطل ہے۔ تو یہ 3 احوال جو ماں کے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے مثال کے ذریعے بھی پیش کر دی۔ بحث ثانی، ان کے احوال ثلاثہ کی وجہ حسر۔ میت نے فروع مطلق متعدد اخوہ و اخوات میں سے کسی کو چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا؟ اگر چھوڑا ہے تو ماں کو حصہ سدس چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو احد الزوجین ماں باپ کے ساتھ موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی موجود ہے تو ماں کو ثلث الباقی ملے گا، اور اگر احد الزوجین نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں ماں کو ثلث الکل یعنی پورے مال کا 1/3 ملے گا۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں احوال ان کے مباحث 4 میں سے ماں سے متعلق جو 4 بحثیں ہم نے کرنے کا وعدہ کیا تھا اس میں سے 2 بحث مکمل ہوئی، 2 بحث جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.